یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے اور میں نے دعا بھی مانگ لی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو دعا اس طرح تیز تیز کیوں کر لیا ہے اور فوراً چلا جا رہا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیوں اتنی تیز تو دعا کر لیا اور واپس چلا جا رہا ہے؟ کیا تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں مجھ پر درود پاک بھی پڑھا ہے یا نہیں؟ اس شخص جواب دینے لگا یا رسول اللہ میں تو دعا مانگ لیا ہوں لیکن اول اور آخر میں آپ پر درود پاک نہیں پڑھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے شخص سن جب تو دعا مانگتا ہے اول میں درود اور آخر میں درود نہیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت تمہاری دعا کو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا دیتا ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں دعا لٹکتی رہتی ہے اور ہم سوچتے ہیں رب کی بارگاہ میں ہم دعا کر لیے ہیں لیکن ہماری دعا قابل قبول نہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ ارے کہاں سے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے رسول پر ہم درود پاک نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوتی ہے؟ تو وہ شخص فوراً پھر مصلی پہ چلا جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ پہلے درود پڑھتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے، پھر آخر میں دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہاری دعا قابل قبول ہو گئی ہے۔ درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، جب ہم دعا بھی مانگیں اگر درود پاک نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتے۔ ارے وہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہی نہیں پڑھتے، سمجھتے ہیں حقیقتاً میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں صرف اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ حقیقتاً میں دینے والا ہے لیکن ذریعہ بنایا ہے، کبھی کسی اللہ کے ولی کے ذریعے دیتا ہے، کبھی نبی کے ذریعے دیتا ہے، کبھی صحابی کے ذریعے دیتا ہے، کبھی فقیر کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کس کو معلوم اللہ رب العزت کون سے بنا کے اوپر ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ موقع یہی ہے جب ہم دعا سے پہلے درود پاک پڑھیں گے اور آخر میں درود پاک پڑھیں گے تو اس میں دعا ہماری رد ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات محترم آج تو بہت سے جماعتیں ایسے نکلے ہیں وہ نبی کے شان میں گستاخی کہتے ہیں اور نبی کے شان میں گستاخی بکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نبی تو کچھ دینے والے نہیں ہیں، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو دونوں جہان کے کنجیاں عطا فرما دی ہیں، دونوں جہان کے خزانوں کے کنجیاں عطا فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دونوں عالم کے کنجیاں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے تاکہ دونوں جہان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دیا۔ رحمت کے کنجی میرے آقا کے ہاتھ میں، برکت کی کنجی میرے آقا کے ہاتھ میں، نعمت کی کنجی میرے آقا کے ہاتھ میں، سخاوت کی کنجی میرے آقا کے ہاتھ میں، دنیا کی کنجی میرے آقا کے ہاتھ میں، جنت کی کنجی میرے آقا کے ہاتھ میں۔ ارے کہاں تک تم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا منہ موڑ کر جاؤ گے، روٹ کر جاؤ گے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اگر تم رحمت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، برکت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اگر تم نجات چاہتے ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اگر تم دنیا چاہتے ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اگر تمہیں جنت بھی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا، کیونکہ دونوں جہاں کے کنجیاں میرے آقا کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، ہم لوگوں کو کیا ہے تحقیق کرنا ہے۔ آج کل سائنٹسٹ کیا ہے اسی کے بنا کے اوپر تحقیق کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں ارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے۔ چلیے حضرات محترم جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت ہونے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حضرت آمینہ کے پاس حضرت شیفا بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی کے امی بھی وہاں موجود ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت عثمان کے امی باہر آتے ہیں، فوراً گھر کے اندر تشریف لے آتے ہیں تو وہاں حضرت
शीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद हैं। वो पूछने लगी, अरे उस्मान की अम्मी क्या हुआ है, तुम बाहर गई हो, इतनी तेज वापस अंदर क्यों आ गई है? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे शीफा सुनो सुनो, मैं जब बाहर गई थी तो एक ऐसा मंजर देखा, आगे क्या होने वाला है मुझे तो नहीं मालूम है, आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हजरत शीफा ने पूछा, माजरा क्या है, जरा हम लोगों को भी तो बता दो। हजरत शीफा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसे ही पूछना था, हजरत उस्मान की अम्मी कहने लगी, अरे शीफा मैं जैसे ही घर के बाहर गई थी तो मैं घर के हजरत आमिना के घर के दीवारों पे इतने चमकदार सितारों को देखा, उसकी रोशनी से मुझे कुछ समझ में नहीं आया यहाँ क्या होने वाला है और क्या होने वाला है। हजरत शीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अरे उस्मान की अम्मी ये क्या माजरा है, अब तक तो यहाँ कुछ नहीं था, जैसे ही तुम बाहर गई थी तो ये नूर कहाँ से आया? जैसे ही हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान और हजरत शीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा बाहर जाकर देखती हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरो दीवार पर आसमान के सितारे चिपके हुए हैं, आसमान के तारे चिपके हुए हैं। हजरत मोहतरम रिवायतों में आता है, ये एक तारा इस दुनिया पे बिछाया जाए तो सारी जमीन समेट जाती है, जमीन से बड़ा तारा है। अरे जब जमीन से बड़ा तारा और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरो दीवार पर एक तारा नहीं बल्कि सैकड़ों तारे चिपके हुए हैं, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है? हजरत मोहतरम साइंसदान कहते हैं ये एक सितारा जब जमीन पे बिछाया जाए तो पूरी जमीन समेट जाती है, और जितने एक तारा ही नहीं बहुत सारे तारे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरो दीवार पर चिपके हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हाँ तारा बहुत बड़ा है, अगर तारा जमीन पे बिछाया जाए तो जमीन तारे के अंदर सिमट जाती है। तारा बड़ा अपनी जगह पर, तारे बड़े अपनी जगह पर, जब मुस्तफा के बारगाह में आ जाए तो तारे छोटे हो जाएंगे, बड़ा भी क्यों ना हो, जब मुस्तफा की बारगाह में आता है तो छोटा हो जाता है। हजरत शान देखिए, ये तारा सारा आसमान को घेरा हुआ, जमीन को समेट दे, और इतने तारे मुस्तफा के दरो दीवार पर छोटे बनकर चिपके हुए हैं। हजरात इसीलिए छोटों को छोटा ही बनना है, अगर बड़े बनने की कोशिश करेंगे तो मिट जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम नबी के बराबर हैं, हम तो नबी के जैसे हैं, अगर ऐसा कहेंगे तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। देखिए हजरत मोहतरम सितारा तो अपनी जगह में बहुत बड़ा है, जब मुस्तफा के कदमों में आ गया तो छोटा बन गया। छोटा बना नहीं, उसको छोटा बनने का हुक्म दिया गया। हुक्म देने वाला कौन है? रब्बे जुल जलाल है। अरे हुक्म किसने दिया? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब चौखट पे आना पड़ेगा तो सरगों को झुकाना पड़ेगा, अगर तुम बड़े क्यों ना हो छोटा होना पड़ेगा। हजरत मोहतरम ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम बहुत सारे जमातें ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं और मेरे आका की शान को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें तो नाकाम है। चलिए हजरत मोहतरम जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे तो सारे सहाबा को माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं, एक शख्स उठ खड़ा होता है और अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह आप अदलो इंसाफ करिए, या रसूल अल्लाह आप अदलो इंसाफ करिए। जैसे ही उस शख्स ने कहना था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आ जाता है, मेरे आका जलाल में आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कौन इंसाफ करने वाला है? तो वो शख्स जवाब देने लगा, या रसूल अल्लाह आप अदलो इंसाफ करिए। जैसे ही जुमला सुनना था, आजकल हम हैं अगर रसूल के शान में गुस्ताखी भी करें, अगर कोई रसूल के शान में बेअदबी भी करें, हम तो साइलेंट हो जाते हैं, अपना घरों में जाकर बैठ जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। हजरत मोहतरम वहाँ हम जैसे लोग नहीं हैं, ईमान वाले भरपूर ईमान वाले हैं। अगर रसूल के शान में कोई कुछ छोटी सी भी बात कह दे वह हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे ही जुमला सुनना था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ खड़े होते हैं और तलवार निकालते हैं, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दे, क्योंकि
ये आपके शान में बेअदबी भी करा है, इसके सर को तन से मैं जुदा कर दूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर जाने दो, ऐ उमर जाने दो, छोड़ दो, जाने दो। तो वो शख्स वहां से चला जाता है। जैसे ही वो शख्स वहां से जाना था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो सुनो, कुछ सालों के बाद इसी के नस्ल से वहाबियत फैलेगी, गैर मुकल्लिद निकलेंगे, गैर मुकल्लिद वहाबी नजदी जितने भी हैं इसी के नस्ल से निकलेंगे। तो यहाँ साबित हो गया है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ही नजदियत का जड़ शुरू हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ही इस तबलीगियों का जड़ शुरू हो गया है। वहां से चलता चलता आज आप देखते ही रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कोई मीलाद मनाना शिर्क बोलता है, कोई 11वीं मनाना बिदअत बोलता है, कोई अपने घरों को लाइटिंग सजाना बिदअत बोलता है। अरे अगर लाइटिंग सजाना बिदअत होता तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आम लाइटिंग नहीं, मेरे आका के दरो दीवार पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सितारों का लाइटिंग को सजाया था, सितारों की लाइटिंग। आज तो हम छोटे मोटे बल्ब सजाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब सजाया तो एक सितारा सारे जमीन को समेट दे, इतना बड़ा सितारा एक नहीं बल्कि बहुत सारे सितारे मेरे आका के घर के दीवार पर सजाया है। ये लाइटिंग को सजाना क्या आज से है? नहीं हजरत, ये लोगों को इल्म नहीं, इनको तो समझ में नहीं आता, ये आज का दौर से नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के खुशी में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरो दीवार पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों का लाइटिंग सजा दिया। लेकिन तरीका बदलता आ रहा है, जैसे जैसे जमाना तरक्की होता आया, आज तो लाइटिंग का जमाना आ गया है तो लाइटिंग को सजाए हैं। हजरत मोहतरम, जैसे ही वो शख्स वहां से चला जाता है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों, इसी के नस्ल से गंदगी फैलेगी, दीन में गंदगी फैलेगी, इसी के नस्ल से दीन में तरह तरह के फितने पैदा हो जाएंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो सुनो, अरे इनके नस्ल से जितने भी लोग नमाज पढ़ेंगे ना इनके नमाजें कबूल होंगे, ये बहुत लंबी लंबी दाढ़ियां रखेंगे, इनके दाढ़ियां कबूल नहीं होंगे, और ये रोजा रखेंगे, इनके रोजे कबूल नहीं होंगे, इनके तिलावत कलामुल्लाह भी कबूल नहीं होगा। अरे ये ऐसे निकल जाएंगे दीन से, ऐसे निकल जाएंगे तीर कमान से निकल जाता है। हजरत, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके मुतालिक तकरीबन 1500 साल पहले ही ऐलान फरमा दिए हैं। आज क्या है, हम इन लोगों से बचना है। अगर हम इन लोगों से नहीं बचेंगे तो हम भी गर्क हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे तबलीगियों के पीछे नमाज पढ़ने से क्या होता है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी जिक्र करते हैं, हम भी जिक्र करते हैं, वो भी दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, वो भी हदीस सुनाते हैं, हम भी हदीस सुनाते हैं। हाँ, वो नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो जिक्र करते हैं, हम भी करते हैं, वो रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं, वो हदीस पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन उनका अकीदा ठीक नहीं है, उनके अकीदा मुकम्मल नहीं है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे, हम लोग जन्नत में जाएंगे। हजरत, ये जन्नत में जाने का इतनी पॉसिबल, इतनी गारंटी के साथ बोलने की वजह यह है, हजरत अब कभी सुने हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कोई तबलीगी जमात था, कोई अहले हदीस था, कोई जमात इस्लामी था? कुछ भी नहीं है। ये सब अहले सुन्नत वल जमात से कट कर हट कर अपनी शान को जताने के लिए, अपनी बात को जगाने के लिए वो अहले सुन्नत वल जमात से हट कर आए हैं। हजरत मोहतरम, ये सब के जितने भी अहले सुन्नत से हटे हैं वो इतने फिरके बदल गए हैं, इतने फिरकों में तकसीम हो गए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा की उम्मत 72 फिरकों में बट जाएगी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कह दिए हैं तो फिरके बटना ही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक के अलावा बाकी 72 जहन्नमी हैं, एक के अलावा बाकी 72 फिरके जहन्नमी तो होना ही है। अगर हम तबलीगियों को सही कह दे तो आका का हदीस को हम इनकार कर दिए जैसा, आका के हदीस को हम ठुकराए जैसा। आजकल हम लोग यहाँ से क्या है, उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती,
काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, वो गैर मुकल्लिद है, वहाबी है, देवबंदी है, नजरी है, वो तो अहले हदीस है, उनके पीछे नमाज नहीं होती। अगर नमाज होती तो मेरे आका ये नहीं फरमाते मेरे उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, ये के अलावा बाकी सारे जहन्नम में नहीं फरमाएंगे। इसलिए फरमाया वो ताकि सारे लोग जहन्नमी है, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात एक ही जन्नती है। क्यों? मुस्तफा से प्यार करती है, अहले सुन्नत वल जमात सहाबा से प्यार करती है, अहले बैत से प्यार करती है, तमाम औलिया से प्यार करती है, ताकि मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तरीका बताए हैं उसी तरीके पर चलती है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात ही जन्नत में जाएगी। पहले जितने भी फिरके निकले हैं वो सब जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत मोहतरम अब तहकीक कीजिए, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे जमात में, सिद्दीक अकबर हमारे जमात में, फारूक आजम हमारे जमात में, उस्मान गनी हमारे जमात में, मौला अली हमारे जमात में, इमाम हसन और हुसैन हमारी जमात में, इमाम आजम हमारी जमात में, इमाम शाफई हमारी जमात में, इमाम मालिकी हमारी जमात में, इमाम हम्बली हमारी जमात में, गौसे आजम हमारी जमात में, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे जमात में, बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह हमारे जमात में, और आला हजरत हमारी जमात में। अरे ये सब कामयाब औलियाए कामिलीन सहाबाए किराम रसूल पाक हैं, इनको छोड़कर कहां जाओगे? कहां तुम जन्नत को ले आओगे? कहां तुम जन्नत को ले आओगे? अगर तुम जन्नत चाहते हो तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा। मुस्तफा के कदमों में जब तक नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए जन्नत नहीं। और एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, इन देवबंदी वहाबी नजदियों के पीछे नमाज इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं आपके सामने एक बात को रख देता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही जा रहे थे मदीना मुनव्वरा में, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी गली से गुजर रहे हैं, एक शख्स मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से आगे आगे तेज तेज चला जाता है और वही शख्स जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा यह शख्स जा रहा है और मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में पहुंचते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हारी नमाजें नहीं हुई। तो सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। अरे ये क्या माजरा है, ये तो नमाज पढ़ा रहा है, हम तो नमाज पढ़ लिए हैं, नमाज हो गई है, लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाए नमाज नहीं हुई। तो सबब पूछते हैं, तो सारे लोग अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज ना होने की वजह क्या है, नमाज ना होने की सबब क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, यह शख्स जब रास्ते से आ रहा था किबले की तरफ मुंह करके थूका था, किबले की तरफ अपना मुंह करके थूका। ये काबे का बेअदब है, काबे का गुस्ताख है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं। काबे का बेअदब और काबे का गुस्ताख के पीछे ही नमाज जायज नहीं। अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, क्या उसके पीछे नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। चलिए हजरत मोहतरम, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। जब काबे के तवाफ फरमा रहे थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे का दामन को थाम लेते हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाने लगते हैं, ऐ काबा, तो इस बात के फख्र ना करना ताकि मैं तेरा तवाफ कर रहा हूं, तुझसे तो मेरे एक मोमिन की शान अफजल वाला है। अरे ये क्या बात है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काबे की शान से मुस्तफा की शान, एक मोमिन की शान अफजल वाला है। काबे की शान से एक मोमिन की शान अफजल वाला, काबे का मर्तबा से एक मोमिन का मर्तबा ज्यादा। ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। तो इससे क्या पता चला? काबे के शान से एक मोमिन की शान अफजल वाला, काबे की शान से एक मुत्तकी की शान अफजल वाला, काबे की शान से एक परहेजगार की शान अफजल वाला, काबे की शान से एक वली की शान अफजल वाला, काबे की शान से सहाबी की शान अफजल वाला, काबे की शान से मुस्तफा की शान अफजल वाला। इससे क्या पता चला? जो काबे की शान से मुस्तफा की शान अफजल वाला, अगर काबे के गुस्ताख के पीछे नमाज नहीं हो सकती तो एक मोमिन की गुस्ताख के पीछे भी नमाज नहीं होगी, वली के गुस्ताख के पीछे भी नमाज नहीं होगी, साहबा के गुस्ताख के पीछे भी नमाज नहीं होगी, और मेरे मुस्तफा के गुस्ताख के पीछे नमाज नहीं होगी। फैसला हो गया।
इन गुस्ताखों के पीछे नमाज नहीं होती। और बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत हम हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, तो वहाँ तो नजदी इमाम होगा, अहले हदीस का इमाम होगा, वहाबी इमाम होगा, देवबंदी इमाम होगा, हम उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ना है। अगर तुम उनके पीछे नमाज पढ़ते हो तुम्हारे नमाजें नहीं होंगी। काबा अजमत की जगह है, एक रकात नमाज के बदौलत में लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब जरूर मिलता है। लेकिन इन वहाबियों के पीछे अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारी नमाजें नहीं होंगी, तुम्हारे नमाजें नहीं होंगे। अगर आप तन्हा पढ़ लेते हैं तो आपकी नमाज हो जाती है, अल्लाह ने चाहा तो आपको जमात का सवाब भी अता फरमा देता है। लेकिन अगर आप इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप कहेंगे हजरत ये तो मक्कतुल मुकर्रमा है, काबा मुअज्जमा है, यहाँ तो अजमत ही अजमत है, रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, बरकत किन लोगों के लिए? ईमान वालों के लिए। वो तो ईमान वाले नहीं है, कुरान का फैसला है, वो तो ईमान वाले नहीं है, उनके पीछे नमाज जायज नहीं है। अगर आप लोग नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाजें नहीं होंगी। बेहतर है आप तन्हा नमाज पढ़ना है, नहीं आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज तो होती नहीं है। आपको काबे को देखने का सवाब मिलता है, आपको क्या है ना काबे का गिलाफ को छूने का सवाब मिलता है, काबे में रहने का सवाब मिलता है। लेकिन उनके पीछे आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाजें जाया हो जाएंगी, आपकी नमाजें छूट जाएंगे, बेकार है। ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुस्ताखी करने की बदौलत इन लोगों के पीछे नमाज नहीं होती। आज तो बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर ये सब सही होते तो पूरे क्या है 73 फिरके नहीं होते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं फरमाते सारे जन्नती हैं, तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो सारे जन्नती है, हर किसी के पीछे तुम नमाज पढ़ लो। नहीं हजरत मोहतरम, जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया तो फिक्स है, इनके पीछे नमाज जायज नहीं है। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर नबी को कुछ मौजज़े अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ मौजज़े अता फरमाया, हजरत इब्राहिम को कुछ मौजज़े अता फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ मौजज़े अता फरमाया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ मौजज़े अता फरमाया। हजरत मोहतरम, जब हर नबी दुनिया में तशरीफ ले आए कुछ ना कुछ मौजज़े साथ लेकर आए। अगर उनके उम्मती हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती उनसे मौजिज़ा तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जो मौजिज़ा अता किया वही वो दिखा सकते हैं। अगर हजरत मूसा अपना असा को जमीन पे मारते हैं तो उससे क्या है ना पानी के चश्मे फुट जाते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजिज़े अता फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में सख्त से सख्त लोहा उनके हाथ में आता है तो मोम बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको वो मौजिज़ा अता फरमाया। चलिए हजरत ईसा की बारगाह में चलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी मुर्दे को ठोकर मारते हैं तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मौजिज़ा अता फरमाया। अगर उनकी कौम ये कहेगी ईसा तुम अगर कुछ मौजिज़ा दिखाओ तो वो क्या है ना मुर्दों को जिंदा कर देंगे। अगर किसी कोड़े इंसान को हाथ लगा देते हैं तो उसे शिफा मिल जाती है। चलिए हजरत मोहतरम, मेरे रसूल को मेरे मुस्तफ़ा को मौजिज़ा देकर नहीं खुद मौजिज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। मेरे मुस्तफ़ा को मौजिज़े देकर नहीं सारे मौजिज़े अदा करके भेज दिया है। हजरत मोहतरम, मेरे आका के इख्तियार में सब कुछ है, मेरे आका के इख्तियार में सब कुछ, दुनिया जन्नत सब कुछ मेरे आका के इख्तियार में है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ रबिया मांगो क्या मांगते हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रोजाना तहज्जुद के वक्त वजू के लिए पानी का इंतजाम किया करते थे हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में आती है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ रबिया क्या मांगते हो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। हजरत जरा गौर करो, अगर आपके पास 1 ही करोड़ है, अगर आप ऐलान करेंगे ऐ लोगों जितना मांगते हो मांग लो, अगर कोई आके कह दिया मुझे 2 करोड़ होना है, आपके इख्तियार में 1 ही करोड़ है, अगर कोई आपसे पूछ दिया मुझे 2 करोड़ होना है तो क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकोगे, ताकि आपकी लिमिट 1 करोड़ है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की लिमिट क्या है? इनफाइनिट है। मेरे मुस्तफ़ा की लिमिट कुछ नहीं, इनफाइनिट है, जितना चाहे उतना। जब
कोई भी इंसान अगर कुछ दावा भी करता है, जो मांगना हो मांगो, दुनिया में ही दे सकता है, दुनिया की ही चीज दे सकता है, माल दे सकता है, दौलत दे सकता है, अच्छे आलीशान बंगला दे सकता है, आलीशान गाड़ियां दे सकता है, इंसान की बस की बात है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान कर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा हजरत रबिया से कह रहे हैं, ऐ रबिया मांगो, जो मांगते हो मांग लो। तो हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं जन्नत में आपका पड़ोसी बनना चाहता हूँ। अगर हम होते, अगर कोई वली या पीरो मुर्शिद हमसे सवाल करे, ऐ लोगों क्या मांगते हो मांग लो, तो हम क्या है ना फौरन, हजरत मेरे घर में तंगी है, मेरे फलां काम रुके हैं, मेरा ये काम हो जाए, मुझे इतनी ज़रूरत है, इन रकम मुझे पहुंच जाए, ये हमारी मिजाज है। लेकिन हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में आई और मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ऐ रबिया क्या मांगते हो मांगो। तो हजरत रबिया देखिए जन्नत भी मांग लिए हैं और जन्नत में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोसी भी मांग लिए हैं। यानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाजू में जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इख्तियार होती तो ही ऐलान करते। ये तो दुनिया है और कयामत के बाद जन्नत मिलेगी और जन्नत में भी हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत भी कंफर्म है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पड़ोसी भी बनने का भी मौका मिल गया है। हजरात, ये इख्तियार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया और दुनिया आखिरत सब मेरे आका के इख्तियार में। मेरे आका जिसको चाहे वो दे सकते हैं, जिसे चाहे उनको दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आपको इतने मरतबा मैं दुरूद पाक पढ़वा रहा हूँ, पहले भी पढ़वा चुका था, इंशाल्लाह आइंदा भी पढ़वाऊंगा। ये क्या है ना, ये आपको बेकार नहीं जाएगा, आपको फजूल नहीं जाएगा। और एक मरतबा पढ़ी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जितने भी दरूद पाक पढ़े होंगे, जिक्र करे होंगे, कुछ भी बेकार नहीं होगा। हजरत मोहतरम, कयामत का दिन होगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा होंगे, ये एक शख्स का आमाल तोले जाते हैं। हजरत, यहाँ दो बातें हैं, उन लोगों के अमाल नहीं तोले जाते। दो ऐसे लोग हैं, यानी दो ऐसे किस्म के लोग हैं, दो बैच हैं। एक ऐसा शख्स है, उनकी एक बैच समझिए, क्या है ना, उनके नामा अमाल तोले ही नहीं जाते ताकि वो कोई दुनिया में गुनाह ही ना किया हो। अमाल तोलने की जरूरत क्या है, कम ज्यादा हो तो ना तोलना पड़ेगा, अगर नेकी भी है बदी भी है तो तोलना पड़ेगा, नेकी कितने किए हैं, बदी कितना किया है। और वो बैच और एक शख्स वो है, सारे के सारे गुनाह है, कुछ नेकी ही नहीं किया, उसके नाम अमाल भी तोले नहीं जाते, उसको डायरेक्ट जहन्नम है, इसको तो डायरेक्ट जन्नत है। और नाम अमाल किन के तोले जाते हैं, हम लोगों के, आप लोगों के, जैसे गुनाह भी करते हैं, नेकी भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, नेकी भी करते हैं, गुनाह कम है, नेकी ज्यादा है, नेकी ज्यादा है, गुनाह कम है। ऐसा हम जैसे लोगों के जब नामा अमाल तोलते हैं तो यहाँ फर्क जान लीजिए, अगर सारे के सारे नेकियां हैं तो उनके नहीं तोले जाएंगे, सारे के सारे गुनाह हैं तो उनके भी नहीं तोले जाएंगे। हजरत मोहतरम, फरिश्तों ने एक शख्स के नाम अमल तोलते हैं तो क्या है ना, गुनाहों का पल्ला भारी हो जाता है, तो फरिश्ता क्या है, वो शख्स को जहन्नम की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा हो गए हैं। मेरे आका ने पूछा, ऐ फरिश्तों, क्यों इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो या रसूल अल्लाह, इसके नाम अमाल में गुनाह ज्यादा है, अल्लाह का हुक्म है इसको जहन्नम में डाला जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में आ जाती है और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, फिर भी और एक मर्तबा इसके नाम अमल तोलो, और एक मर्तबा इसके नाम अमल तोलो। या रसूल अल्लाह, हम तो फरिश्ते हैं, हमसे तो कम ज्यादा नहीं हो सकता, हम तो सही तोले हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और एक मर्तबा तोलो। तो फरिश्ते रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करने लगते हैं, या इलाहल आलमीन, हमने तो वहाँ उसके नामा अमल तोले थे, उसके पल्ले में गुनाह ज्यादा हो गए हैं, वो तो जहन्नम का मुस्तहिक है, हम उसको जहन्नम में ले जा रहे थे, लेकिन तेरे मुस्तफ़ा आ गए और वो कह रहे हैं और एक मर्तबा तोलो। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, अब मेरी ना सुनो, मेरे महबूब की सुन जाओ, मेरे महबूब की बात सुनो, और एक मर्तबा तोलो। तो फरिश्तों ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने और एक मर्तबा तोलते हैं तो क्या है, फिर भी गुनाह ही ज्यादा हो जाते हैं, फिर भी गुनाह ज्यादा।
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آتی ہے اور میرے آقا اس ترازو کے قریب جاتے ہیں، جیب میں سے ایک چٹھی نکالتے ہیں اور اس پلے میں ڈال دیتے ہیں، فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں اے فرشتوں اب تولو۔ جیسے ہی تولنا تھا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ منظر دیکھ رہا تھا اس شخص کو اور فرشتوں نے مبارکباد دے دی، اے شخص تو جہنم کا مستحق تھا، مصطفیٰ تجھ پر کرم فرما دیے، تو جنت کا حقدار ہو گیا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ وہ شخص میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہاں تو نہ میری نمازیں کام آئی، نہ تو میرا ذکر کام آیا، نہ میرے روزے کام آیا، یا رسول اللہ یہاں تو میرا حج نہیں کام آیا، یہاں تو میرا طواف کام نہیں آیا، نہ میرے اولاد کام آئے، یا رسول اللہ صرف آپ کام آئے ہیں، میری وہ کون سی ادا ہے جس کی بدولت آپ مجھ پر رحم فرما دیے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے شخص جب تو دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پڑتا تھا وہی درود کو میں محفوظ کر دیا اور تیرے پلے میں ڈال دیا۔ اب یہ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ وہی درود پاک ہے، انشاءاللہ کل قیامت میں آپ کو کام آئیں گے۔ آج میں کہنے سے کوئی اور کہنے سے آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ خود بھی پڑھتے ہیں تو یہ بیکار نہیں جائے گا، انشاءاللہ کل قیامت میں آپ کو کام آئیں گے۔ اسی کے تحت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔